सभापति जी। Papers to be laid on the table. General Retired V.K. Singh. Sir, with your permission, I rise to lay papers mentioned against my name at serial number 1 of the revised list of business today. Chidambaram ji, you can sit. It's vacant, no problem. Sri Nityanand Roy. सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यावली में क्रमांक संख्या 2 पे मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। श्री पंकज चौधरी। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यावली में मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। श्री राजीव चंद्रशेखर। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 of the revised list of business for today. Srimati Annapurna Devi, please restrain from talking. सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यावली सूची की क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। श्री BL वर्मा। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की राज्यसभा की पुनरीक्षित सूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमांक हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। श्री नित्यानंद राय। महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री गृहराज मंत्री Whatever name I have approved, श्री अजय कुमार जी की ओर से आज की संशोधित कार्यावली में क्रमांक संख्या 7 पर उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। Yes, I have power to ask you to please sit down. Sri Narayan Swami. Commission, on behalf of my colleagues, Sri Pratima Bhumika ji, I lay the papers mentioned against her name at serial number 8 of my today's revised list of business. Thank you, sir. Srimati Annapurna Devi. महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यावली सूची की क्रम संख्या 9 पर साथी मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार के नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई। Respected Chairman, sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 10 of today's revised list of business. Statement by Minister Sri Nityanand Roy. सभापति महोदय, मैं कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी के प्रबंधन और संबंधित मुद्दों के संबंध में विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय समिति के 229वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों सम्मुक्तियों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। Motion for election to the Council of the Indian Institute of Science, Bangalore. श्री धर्मेंद्र प्रधान। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यावली सूची पर उल्लेखित मेरे नाम के सामने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु की परिषद की सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए सदन के सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव को मैं सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। Motion moved. Those in favor please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Motion for election to the Central Silk Board. Shri Piyush Goyal. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to move the following motion listed against my name in today's revised list of business, that in pursuance of Section 43C and Section Silk Board Act 1948, read with Rule 5.1 of the Central Silk Board Rules 1955, this House do proceed to elect in such manner as the Chairman may direct 2 members from amongst the members of the House to be members of the Central Silk Board. Motion moved. Those in favor please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. देना पड़ेगा, please. I have not received any notice. Once I receive it, I will go through it. आप लोग अपना जगह पे बैठ जाइए. And the other notices by Susmita ji and Sivadathan, I have not admitted them. What is this?
What is this? You all belong to one party, I thought. No, you can't. You can't. Nah. You know the rule book. I know the rule book. If you have sent a notice, I have not received any notice. How can? No. 0 hour, Dr. Sasmit Patra. If the notice is there, I will go through the notice and then get back to you. Please. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का मेरा 0R का संदर्भ है प्रधानमंत्री आवास योजना पे उड़ीसा में जिस तरह की हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है। 11 दिसंबर को माननीय उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी माननीय, जिसपे उन्होंने उल्लेखित किया है किस तरह से राज्य को, उड़ीसा राज्य को 5,09,000 घर जो है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है स्टेट पोर्टल में और वो आवास पोर्टल में सम्मिलित होने की आवश्यकता है। इसलिए केंद्र सरकार से दरख्वास्त है कि 5,09,000 जो प्रधानमंत्री आवास के घर हैं उनको माननीय सभापति जी, क्वेश्चन नंबर 181, क्वेश्चन आवर माननीय आनंद जी, क्वेश्चन आवर में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। क्वेश्चन आवर में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। It's not as per rule, I can tell you, but tell me आप कहना क्या चाहते हैं, आप बताइए प्लीज। मैं माननीय उपसभापति महोदय, आपका ध्यान रूल 256 2 की तरफ ले जाता हूं। रूल 256, suspension of a member. Clause 1 deals with the process. The chairman may, if he deems it necessary, but I am not. Clause 2 and the proviso. If a member is so named by the chairman, he shall forthwith put the question on a motion being made, no amendment, adjournment or debate being allowed, that the member naming him be suspended from the service of the council for a period not extending the remainder of the session. Provided that the council may at any time on a motion, at any time, that's why I have raised it. Yes. On a motion being made, resolve that such suspension be terminated. Sir, myself and my colleague Shri P. I'm coming back. आपने जो माना ऑनरेबल चेयरमैन को दिया, let me hear. मैंने आपको सुन लिया, please. Just allow me, sir. मैंने सुन लिया. Please allow me. Please. No, I have to draw your attention of the chair, sir. माननीय चेयरमैन को आपने जो नोटिस दिया उस पे मैं आपको ऑब्जर्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ. Please allow me, sir. I've heard you. Allow me just Honorable. Allow me 1 minute, sir. Please allow me, sir. Sir, I want to draw your attention. Page 316, Rajya Sabha at work. Last portion. Sir, the last paragraph. Last 4 lines. That was 14th of December 1967, when Honorable Shri Jaisukh Lal Hathi was the chairman, and Shri Raj Narayan then was suspended. Then thereafter, the House was adjourned for lunch recess. When the House reassembled, the member continued to sit in the House. A motion was moved by a member that the House be adjourned again. Yes. It was accordingly adjourned. After the House reassembled, upon a motion moved and adopted, the suspension of the member was terminated. We have given a notice for the termination. I'm coming on the notice, Anand ji, please. अब आप मुझे कृपया सुने, आपने जो नोटिस दिया उसमें बताएं. Honorable members, when the House met this morning, Sri Anand Sharma, Deputy Leader of the Indian National Congress, gave a notice to the Honorable Chairman Rajya Sabha of his intention to move a motion for termination of the suspension of the 12 members of the Rajya Sabha under the proviso to Rule 2562, who were earlier suspended by the House on 29th November 2021. He raised this matter in the House also immediately after laying of papers. On his persistent demand, Honorable Chairman observed that he will examine the notice given by Sri Anand Sharma. I have now been informed by Honorable Chairman that notice given by Sri Anand Sharma is not accompanied by the motion which he intends to move in the House, and as such the notice given by Sri Anand Sharma is inadmissible. I may also add here that a motion can be moved in the House by any member with the consent of the Honorable Chairman only. Thank you. Question number 181, Sri V. Vijay Sai Reddy. Sir, according to Andhra Pradesh government, the
dues under NREGA is approximately around 4,976 crores. The pending material component, according to the state government, is 76%. And in fact, the union government, in the reply, has clarified that the dues amount, the dues relating to material component is only 1,341 crores. Can the minister explain why is the delay in clearing the dues? And can the minister also explain why there is a disparity in clearing the material component that is due to Andhra Pradesh even after submission of all documents, even after submission of all the clarifications, and inspection has been conducted by the central government. Sir, voice of the opposition. Honorable Minister. महोदय, हरियाणा आंध्र प्रदेश को एक भी लेबर बजट में बकाया नहीं है। जहां तक इन्होंने कहा है कि मटेरियल का पैसा बाकी है, इसके अंदर वित्तीय अनुशासन और टेक्निकल प्रॉब्लम, विगत वर्ष ऑडिट रिपोर्ट तथा ऑडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र का अनिवार्य होना, सोशल ऑडिट के रिपोर्ट और वसूली पर समुचित कार्रवाई का विवरण होना, हर जिले के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में सूचित करना, जिला स्तर पर मजदूरी तथा सामग्री का अनुपात 60-40 होना, सामग्री मद में बैंक खाता में ब्याज राशि में का केंद्र सरकार को वापसी, केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, नेशनल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, केंद्रीय जांच दल का रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई का होना, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित वित्तीय अनुशासन का अनुपालन का सुनिश्चित करना। कुछ राज्यों में मजदूरी, मैं आपके सामने आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है, उसमें निम्नलिखित कमियां पाई गई है। राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है। राज्य सरकार के द्वारा दी गई सूचना जैसे ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाई गई राशि और बैलेंस शीट में दर्शाई गई राशि आपस में मेल नहीं खाती, इस हेतु स्पष्टीकरण मांगा गया। सामग्री मद में जिला स्तर पर 40% से अधिक खर्च। Second supplementary. Due to pandemic, Andhra Pradesh has seen reverse migration of labor from cities to rural areas, which has created additional demand for workers in NREGA. Andhra Pradesh has issued thousands of job cards and created crucial assets like building, Anganwadi villages, village secretariat, Raitu Bharosa Kendras, etc. This has raised the cost of incurred by Andhra Pradesh. However, the central government has misconstrued the utilization of funds by Andhra Pradesh government by accusing the state government of Andhra Pradesh of inflating NREGA costs. It is not correct. Even though the center has inspected NREGA records and stated in the head of the state and found no discrepancies, absolutely no discrepancies. Can the minister explain as to on what basis the union government is making false allegations saying that cost has been inflated? Why center has not released the pending dues after inspecting NREGA records? उपसभापति महोदय, मैं आपसे पुनः कहूंगा कि जो वित्तीय अनुशासन, तकनीकी जो उसके प्रॉब्लम है उसको देना, आंध्र को अभी तक हम 45,800 में आना राज्यसभा के अनुरूप नहीं है। प्लीज गो बैक। ये पूरे क्वेश्चन आवर है, क्वेश्चन आवर को चलने दें। आप दूसरे मेंबर से डिवाइड कर रहे हैं, आप किसी राज्य कर रहे हैं। और आंध्र को भी सुनिश्चित करना चाहता हूं कि जिस दिन
जो आपसे परीक्षा मांगी गई है वो पूरा होने पर निश्चित रूप से केंद्र सरकार उसे तुरंत श्री कनक मेहता अनिल कुमार। I request the Honorable Minister, there are so many complaints with regard to the state of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh government. Honorable members cannot come to other side. Please go to that side. Please. Members cannot come to other side. Please go back to your side. Please, I am telling you. Please go back to your side. Sir, I request the Honorable Minister, there are so many complaints from the Andhra Pradesh. The present government did not pay the amount which was works under the already done by the NREGA. NREGA funds are also diverted by the central, by the state government and utilized some other purposes. After there are court proceedings also there. After the intervention of the court only, they made some payments. Subsequently, the government misused most of the NREGA funds. Therefore, be brief. I request the Honorable Minister, what steps you have taken in respect of diversion of funds and non-payment of the NREGA funds to the contractor. Please sit down. Please be brief, please. But whether such complaint is addressed and directed to see, please the payments to be made to the contractors. उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो उठाया है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी शिकायत आई नहीं। लेकिन जो मैंने कहा उन पर हम कार्रवाई के लिए उनको कागज दिया है। अगर इनके पास कोई ऐसी सूचना है तो ये लिखित मुझे दें, मैं कार्रवाई करूं। माननीय प्रसन्नाचार्य जी, Minister, whether it is a fact that in some of the states the minimum wage rate of that state is more than it is one of the reasons why more laborers are interested towards the state projects than the Manrega projects. So I would like to know from the minister whether the government will consider to raise the Manrega at par with the state wage rate of the respective state. माननीय मंत्री जी। महोदय, ये राज्यों के द्वारा निर्धारित दर में ही हम उनके साथ करते हैं। 20% का दर अभी हमने बढ़ाने का काम किया था। ऑनरेबल एम थंबीदुरई, ऑनरेबल एम थंबीदुरई। Honorable Prime Minister of India sanctioning more funds for Manrega program. At the same time, I request the Honorable Minister, because like Andhra Pradesh, many other states are requesting the funds to be allocated quickly for the implementing the program. What are the actions the government is going to take to fulfill Honorable Prime Minister's program, fully sanctioning the money for the state governments? Thank you. महोदय, माननीय सदस्य को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे 2 मिनट का समय दिया जाए। अगर 13-14 तक देखा जाए, 6, 7 और 13-14 में, तो कुल श्रम सृजित दिवस था 1660.77 करोड़ और 14-15 से 21-22 जेल में ना है, अपने अपनी सीट पर जाए और इस साइड ना है। 2044.37 करोड़। अगर रिलीज की गई निधि 2,02,13,220 करोड़ था
वहीं 4,89,000 हमने ये 7 साल में देने का काम किया और कई ऐसे काम हैं जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोरोना काल में आपने देखा कि 389 करोड़ दिवस दुनिया में इतना बड़ा कोई लेबर सपोर्ट का नहीं रहा, वो काम हमने करने का काम किया। केवल वही नहीं, कोई ऐसा राज्य नहीं जिसने जो पीढ़ी उनके साथ बात करके हमने पीढ़ी दिवस मनाया, पर्सन डे दिवस। हमने उनके काम में पहले पंचायत में यूनिट था महोदय 60-40 का, हमने जिला किया। जिला इसलिए किया कि कहीं आंगनबाड़ी केंद्र, कहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ये मोदी जी ने समाज के अंदर, गांव के अंदर रोजगार को भी दिया, एसेट को भी दिया। अगर आप एक नजर देखेंगे, पहले महिलाओं की भागीदारी केवल 48% था, अभी 54.12% है। अगर नरेगा सॉफ्ट में आधार देखेंगे तो पहले 76 लाख था, अभी 11.33 करोड़ है। अभी बैंक में जो जा रहा है 99% लोगों को बैंक में जा रहा है पारदर्शिता के तहत। इसलिए मैं उपसभापति महोदय ये जरूर कहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में जो पहले खातों में नहीं जाता था, अब सीधे खाते में जाता। पहले ग्राम पंचायतों में 22 से 29 रजिस्टर होते थे, अब केवल 7 रजिस्टर होते हैं। ये कृषि कार्य में पहले 49% था, अभी 69% हम कृषि कार्यों में लगाए हैं। व्यक्तिगत परिसंपत्तियां पहले केवल 17 था, अभी 61 है। और मैं इतना ही कहूंगा, संक्षिप्त जवाब दे। क्वेश्चन नंबर 182, इंदु बालाजी। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री इंदु बालाजी, गांगुली जी। ये क्वेश्चन माननीय सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है। इफ योर क्वेश्चन 82 हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट, हिमाचल प्रदेश क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश। ये जनरल एक प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश प्लीज। क्वेश्चन नंबर 183 श्री प्रकाश जावड़ेकर। 83 माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। उपसभापति महोदय, मैं एक सदस्य हूं, मैं लोकतंत्र के तरीके से सवाल पूछ रहा हूं और मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। सवाल पूछे। ये अपोजिशन लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये अपोजिशन है सवाल पूछे कि जो हत्या कर रही है। सवाल पूछे। मेरा सवाल है कि 2014 में 14 के पहले जिस गति से नेशनल हाईवेज बनते थे उसमें 3 गुना बढ़ोतरी हुई है 2014 के बाद। तो मेरा सवाल ये है कि 2014 के पहले ये गति कम क्यों थी और अब अगर बढ़ी है तो मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया है, गडकरी जी ने क्या किया है कि ये गति बढ़ी है? इसका मुझे जवाब चाहिए। माननीय मंत्री जी के जवाब के अलावा कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। हमारी पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन थी वो 11.7 किलोमीटर पर डे आई थी और काफी काम रुके थे। करीब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार आई। अब करीब 406 प्रोजेक्ट जिसकी कीमत 3,85,000 करोड़ थी वो स्टॉल प्रोजेक्ट थे, वो बंद पड़े थे।
प्रोजेक्ट बंद पड़े थे, इसका कारण लैंड एक्विजिशन, उसके बाद हम कुछ केसेस में कोर्ट में गए थे, कुछ जगह फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, कुछ जगह लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम थे। हमने इन सब का रिव्यू किया और मुझे सदन में बताते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान की बैंकों को हमने 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया और सब प्रोजेक्ट फिर से शुरू किए। और आज हमारी जो स्पीड है वो 38 किलोमीटर पर डे तक पहुंची है और इस साल मेरा विश्वास है कि वो 40 किलोमीटर से भी ज्यादा स्पीड इसमें होगी और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। और इस समय मुझे सदन को बताते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए। सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंस्ट्रक्शन रोड का ये हिंदुस्तान में हो रहा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। दूसरा ऐसा है कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर 2.5 किलोमीटर 4 लेन कंक्रीट रोड 24 घंटे में बनाया गया, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड सोलापुर बीजापुर सेक्शन में 1 लेन बिटवीन रोड 26 किलोमीटर 22 घंटे में हुआ, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। तो इस बार काफी बड़े प्रमाण पर वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं और हमारी सरकार और राष्ट्रीय महामार्ग पहले 91,287 किलोमीटर था, 1,40,937 किलोमीटर, यानी 55% इंक्रीज हुआ और गति शक्ति और भारतमाला में 2 लाख किलोमीटर तक और आगे जाएगा। और निश्चित रूप से आने वाले 3 साल के अंदर हमारा यूरोपियन स्टैंडर्ड और अमेरिका के बराबर, अमेरिकन स्टैंडर्ड के बराबर हमारे राष्ट्रीय महामार्ग बनेंगे, ये मैं विश्वास के साथ विश्वास से सदन को बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री सर, सेकंड सप्लीमेंट्री पूछने के लिए जो सदन में स्थिति है, सेकंड सप्लीमेंट्री मैं आपको ही पूछ रहा हूँ। लेकिन सर, जिन्होंने शोर शराबा करके हाउस को बाधित किया, सप्लीमेंट्री नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ कि उन्होंने माफी मांगने के बजाय वो ये शोर शराबा करते हैं, सप्लीमेंट्री माफी नहीं मांग रहे। आप सप्लीमेंट्री पूछे। तो मैं मांग करता हूँ कि आप सभी जो वेल में है इन्होंने माफी मांगना चाहिए। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि लेह के पास या ऐसे बहुत प्रोजेक्ट्स पड़े थे या कुछ नए सिरे से लिए गए हैं, उन्होंने ये जो काम पिछले 7 साल में नेशनल हाईवे ने ऐसे क्रिटिकल लिंक्स जो बनाए हैं उसको भी देश को संज्ञान होना चाहिए। और इसलिए मैं मांग करता हूं मंत्री विस्तार से इसका जवाब दे। धन्यवाद। लेकिन ऑपोजिशन धन्यवाद माफी मांगे। माननीय मंत्री जी आपका जवाब जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। मैं बताना चाहूंगा कि लद्दाख और लेह से शुरुआत होने के बाद हमने एक जोजिला टनल बना रहे कारगिल के नीचे और इसका 4 बार टेंडर हुआ था और टेंडर में इसकी कीमत 11,000 करोड़ रुपए थी, पर हमने विशेष प्रयास करके इस टनल को 7,000 करोड़ रुपए की बचत की, ऐसा बताया और इसका काम जोरों में शुरू है। इसके काम के लिए जो पीरियड था वो 3.5 साल का था, पर मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ रात दिन अभी वहाँ -8 डिग्री पर लगातार अंदर में 1,000 मजदूर अंदर जाकर टनल में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से 2024 के पहले मैंने उनको कहा कि 2024 के पहले इसको पूरा करेंगे, ये टनल पूरी हो जाएगी। इसको आगे आने के बाद एक झीलपुर टनल है, इसका भी काम लगभग पूरा हुआ है, आने वाले 3 महीने में हम उसको भी पूरा करेंगे। फिर लद्दाख लेह से इसके कारण 6 घंटा समय रखेगा। उसके बाद श्रीनगर आएंगे, श्रीनगर से फिर डायरेक्ट दिल्ली से कटरा ये एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, जिससे दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा और दिल्ली से कटरा 6 घंटे में होगा और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में होगा। और ये जो दिल्ली से आने के बाद हाईवे मुंबई जाएगा तो 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई होगा और दिल्ली से देहरादून ये 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में और दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में। पूरा इस
प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाएगा और 2 साल के अंदर ये काम पूरे होंगे, ये मैं विश्वास के साथ सदन को बता रहा हूँ। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, हमारा मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में लोग आ रहे हैं। ये हाईवे भी बन गया है। तो एक प्रकार से पूरे देश में, चाहे दिल्ली से बंगलोर से चेन्नई तक हो, चाहे हैदराबाद से चेन्नई तक हो, ऐसे 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। और ग्रीन नेशनल हाईवे जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, ये कम से कम हम लोग जो कर रहे हैं, इसमें टोटल लेंथ जो है वो करीब 8000 किलोमीटर है और इससे सीधा डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी, एक्सिस कंट्रोल भी हो जाएगा और निश्चित रूप से इसमें काफ़ी बड़ा परिणाम आएगा। और मेरा विश्वास है कि ये 26 ग्रीन हाईवे देश के पूरे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल देंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम होगा, जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, नए रोजगार निर्माण होंगे और रोड के कारण विकास होगा। मैं अध्यक्ष महोदय, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, वो बार बार मैं अपने ध्यान में रखता हूँ कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और इसी बात से हिंदुस्तान भी समृद्ध, संपन्न और प्रगतिशील राष्ट्र होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी अच्छा होगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट आएगी। और प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की है, उसमें 110 लाख करोड़ का काम हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में, पाइपलाइन में कर रहे हैं। 100 एयरपोर्ट्स बने हैं, रेलवे में काफी मेट्रो के काम हो रहे हैं और ये देश दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया के प्रथम 5 देशों के पंक्ति में पहुंचेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। माननीय जफर इस्लाम। धन्यवाद सर। Thank you sir for giving me this opportunity to ask a supplementary question. सर, आदरणीय मंत्री जी से की जितनी भी तारीफ की जाए, मैं पिछले 22 साल से देख रहा हूँ उनको किस तरह से उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल नक्शा चेंज कर दिया, पहले महाराष्ट्र में, अब पूरे देश में। तो उनकी जितना भी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर कि पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि जो उन्होंने बहुत सारे जो प्रॉब्लम वाले थे प्रोजेक्ट उसको खत्म किया और उन्होंने हैम प्रोजेक्ट शुरू किया, जो उसको इनिशिएटिव सरकार को जाता है, जिन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। लेकिन BOT, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, ये इसमें थोड़ी गति कम आई है, क्या उसमें तेजी आएगी? अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत सम्मानित सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि कोविड पीरियड के बावजूद हमारे सरकार ने इस क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। हमारी स्पीड बढ़ी नहीं है और आज हम लोग नवंबर में है। मार्च एंड जब होगा तब मैं आपको विश्वास के साथ बताऊंगा कि हम और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे और हमारा रोड कंस्ट्रक्शन की स्पीड जो 37 किलोमीटर आई थी, वो 45 किलोमीटर से ऊपर लेकर जाएंगे और गति बढ़ाएंगे। जो ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, उसकी गति बढ़ी है। जो स्टॉल प्रोजेक्ट है उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट बंद पड़े थे, उस प्रोजेक्ट को हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को रिप्लेस कर रहे हैं। अगर नहीं होता है तो उसको टर्मिनेट कर रहे हैं और उसकी अड़चनों को भी रिजॉल्व कर रहे हैं। NHI में इसके ऊपर विशेष रूप से कमेटी है। NHI चेयरमैन, मेंबर और हमारे सेक्रेटरी मिलकर तुरंत निर्णय करेंगे। उसके बाद मैं बैंकों के साथ, बाकी लोगों के, राज्य सरकार के साथ मीटिंग लेता हूं और लगातार रिव्यू करता हूं और रिव्यू करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। अब इस प्रकार के कोई प्रॉब्लम नहीं है और पैसे की भी कोई कमी नहीं है। मैं आज सदन को और एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे पास अमेरिकन फंड, कैनेडियन पेंशन फंड, मैक्वारे जैसी ऑस्ट्रेलियन कंपनी, हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है। पर इसके बाद हम रोड बनाएंगे तो हम छोटे गरीब लोगों से पैसे लेकर बनाने वाले हैं और उनको 6% से ज्यादा इंटरेस्ट मंथली हम बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट देंगे और गरीब लोगों की इन्वेस्टमेंट रोड सेक्टर में करके उनके सहयोग से अब हजारों करोड़ रुपए उनको देंगे, जिससे उनको ब्याज मिलेगा, फिक्स रिटर्न मिलेगा और उस प्रकार की योजना भी हम बना रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा इस देश के सामान्य लोगों को होगा। जो विशेष रूप से DPR है, उसके बारे में भी हमने काफी मेजर्स लिए हैं। वन टाइम फंड इन्फ्यूजन, ये जो बात प्रकाश जी ने बताई थी कि काफी प्रोजेक्ट अटके थे, उनको हमने मदद की है। उसके बाद रीपैकेजिंग कर रहे हैं, प्रीमियम का रीशेड्यूलमेंट कर रहे हैं
स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ प्लान एक्विजिशन एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस कर रहे हैं, एग्जिट पॉलिसी फॉर इक्विटी इन्वेस्टर इसको हमने अलाउ किया, रिवैम्पिंग डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इसको किया, मार्केट फ्रेंडली पीपीपी हैम ईपीसी इसके डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए, इनोवेटिव फाइनेंसिंग ऑप्शंस लाए, मोनेटाइजेशन इसमें एनएचपी टीओटी इनविट एसपीवी ये लाया है, एलआईसी के लिए बोरोइंग अभी किया है, लॉन्ग टर्म पेंशन फंड से लिया है, हिंदुस्तान की बैंक हमको पैसे देने के लिए पीछे पड़ी हुई है, कोई कमी नहीं है मंत्री जी, पैसे की कमी है, आप जवाब अपना भेज दें माननीय सदस्य। हम निश्चित रूप से इसको पूरी तरह सक्सेसफुली करेंगे, ये विश्वास के साथ मैं बताना चाहता हूं। माननीय सदस्य, आप क्वेश्चन और नहीं चलने देना चाहते, ये क्वेश्चन सदस्यों का है, इसको तैयार करने में एक एक जवाब को सरकार का कितना पैसा खर्च होता है, समय लगता है, देश की जनता के लिए सबसे उपयोगी है। आप क्वेश्चन और नहीं चलने देना चाहते, कृपया आप दूसरों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण न करें। जो सदस्य पूछना चाहते हैं उन्हें पूछने दें। वेल में आकर खड़ा होना, इस तरह से प्ले कार्ड लेकर दिखाना, विवश करना चेयर को, ये राज्यसभा के रूल्स प्रोसीजर के अनुसार बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपसे कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि अपनी सीट पर जाइए, क्वेश्चन आवर चलने दीजिए प्लीज। हाउस स्टैंड्स एडजॉर्न टिल 2 PM। माननीय सभापति जी, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, मिसेस सुष्मिता देव जी, सुष्मिता देव जी, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन नहीं, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन पे बोलना चाहते हैं माननीय लोपी, तो हम इजाजत देते हैं जी। मैं शॉर्ट में बोलूंगा, आप बोल रहे जी। तो सर, ये हमारे जो 12 लोगों को सस्पेंड किया गया है सर, मैं इस पे इजाजत आपको नहीं दूंगा। थिंग्स हैव बीन मेड क्लियर एम्पल टाइम्स। प्लीज सुष्मिता देवी, प्लीज प्लीज प्लीज। Since my mic is on, let me talk. सुष्मिता देव जी, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है। सुष्मिता जी, आपकी बात रिकॉर्ड पे, प्लीज प्लीज स्पीक ऑन द सब्जेक्ट प्लीज। Sir, just 30 seconds. This is a very important discussion. Yes. On the new variant Omicron COVID. But sir, what is equally important is our 12 honorable members You are who have been supposed to suspended. speak on the subject They should only. be allowed to I participate with request us, you sir. time and again to You should speak be on the allowed to subject. Then participate. only it will go on record, I'm very Sushmita ji. grateful you've allowed You are this very discussion. experienced. You know you have to speak on the subject only. Honorable members I request you who to are speak on the equally subject concerned only. about this issue. You are We not all willing want to. participate You are not in willing this, to sir. discuss this. But sir, ये the इतना entire इम्पोर्टेंट विषय opposition, ओमिक्रॉन the का, entire opposition पहले प्राइस is राइज of का the इशू view- था, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन माननीय चेयरमैन ने सैंक्शन किया। ये देश के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। प्लीज सुष्मिता जी, सुष्मिता जी, प्लीज स्पीक ऑन दिस, अदरवाइज इट विल नॉट गो इन रिकॉर्ड। प्लीज स्पीक ऑन द सब्जेक्ट। Sir, entire session नदीमुल हक जी, नदीमुल हक जी, suspended, sir. प्लीज। सुष्मिता जी आर नॉट इनिशिएटिंग डिस्कशन। नदीमुल हक जी, आई विल कॉल नेम्स वन बाय वन। नदीमुल हक जी। सर, मुझे भी यही कहना है सर कि 12 आदमी जो बाहर है सर, उनको मौका दीजिए अंदर आकर। माननीय वीर रंजन विश्वास जी, माननीय वीर रंजन विश्वास जी, स्पीक ऑन द सब्जेक्ट। Cabinet minister is there. So the minister is not here. Mani, she is there. Concerned minister, she is there here. अपनी सीट पर जाइए, I will ask, प्लीज प्लीज सीट पर जाइए, I will ask concerned minister is here. माननीय मिनिस्टर, किसी को आप कैबिनेट मिनिस्टर को प्लीज प्लीज। Sir, cabinet minister is on his way. He's on his way. He's in the washroom. Please. House stands adjourned for 15 minutes. For 15 minutes. सभासदों, माननीय उपसभापति जी, Honorable members, we will start the short duration discussion now. The first speaker is Sushmita Dev. Please, this is your good opportunity
Sir, You are a new sir, member it in is this my house. humble request. It is an extremely important matter, the Omicron that is spreading. But equally important is the fact that 12 of our honorable members of this house you speak on remain this subject. suspended. If you have to speak, and you we have to all speak want on to this subject. participate. We want them Because to also them this to was participate. discussed in the Business We should Advisory revoke the Committee, suspension, sir. and that is why this has been included. Yes, please. We respect the honorable member's sentiment. We respect what the honorable member has said. But she has also seen the way lady marshals were insulted in this house, were attacked in this house. All the staff is serving all the members, is serving to run this house in order. After attacking them, after strangulating the marshals, all they have to do is apologize. That is the least courtesy they can show to the members who are serving this house. He is addressing the chair. On 13th of December, when we are paying homage, I have called the head of the house. I security have called staff him. who laid their lives to protect the Parliament House. Same way, this staff is also working to protect the dignity of this house. If certain members have done wrong, have attacked these marshals, have insulted these marshals, have insulted this house, the least we explanation expect is that they apologize, and then we will be very benevolent towards the members. But if they expect that they will attack the marshals, they'll insult lady marshals, and then also they have a right to come back in, I think it is completely irregular. It's quite unfortunate that senior members of the opposition are not willing to repent for the acts of their colleagues. So, Ms. Susmita Dev, are you participating in this discussion? Are you participating in this discussion? If you don't want, you are in your seat, that's why I am telling you. So go to your seats. Ms. Susmita is in her seat. You all go to your seat. If you have to speak, go to your seats. Government should tender apology in the house. Miss Susmita, I have called the name of Susmita Dev and she is in her seat. Let her speak. Sir, the suspension of the 12 honorable members of this house are totally undemocratic and illegal. We request that their suspension should be revoked. They should be allowed to participate in the proceedings, You are sir. supposed to speak This in is the very important. short duration discussion on COVID-19. But it is my humble request, sir. Please revoke the But her suspension humble of request- our Okay, I have given you the chance. Now the leader will speak. Let them also Government is participate willing in to this. consider. We will all The participate, government sir. is willing to consider their request, but they have to apologize for the suspension, I acts of believe, attacking there's- lady marshals, for the way they have behaved with the people who are protecting the security of this house. How can they expect that they will attack them and then expect them to serve the nation, serve this house? People here have given up their lives. On 13 December, we paid homage to them. They gave up their lives for this sanctum sanctorum, only for these members of parliament in the opposition to insult them and attack them and try to strangulate them. It is a matter of shame that they are not even willing to repent for their actions. Sir, All go to your seats. I can allow LOP to speak. Sir, सर LOP. एक मिनट सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि लीडर ऑफ द हाउस You all go to your seats. No, LOP they are speaking. there. Sir, they were here. At that time he spoke. There has to be They order were in the here. house. He Then spoke. only you can speak. Yes, maybe. But what house says that it is not in You order? go to your seats. Don't tell lessons to us. Sir, जो हमने आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं पहले से भी, और हमने जो गुनाह नहीं किया उसका इल्जाम उन्होंने लगाया। नहीं। Mr. LOP was discussing short duration discussion on COVID-19. It is a very important subject. This was raised by the opposition and ruling party both
to have a discussion on COVID-19, a short duration discussion. The situation is still very bad. So we have to discuss this subject. I have called Sushmita Dev, leader of the House has spoken. If you are interested to speak on this subject, you can. Otherwise, I'll call the next time. I'll call the next time. गाय को बाहर किया देते आपको यहाँ बैठना है सर लिसन टू मी देखिए कोई हमारी देखिए ये 11 तारीख का घटना अलग है 10 तारीख का अलग है लेकिन उन्होंने जो एलिगेशन बार बार कर रहे हैं 10 तारीख की घटना को लेके यहाँ पर बोल रहे हैं आपने तो शिक्षा दी 12 तारीख के घटना के ऊपर लेकिन 11 तारीख के घटना में कोई महिलाएं नहीं थी और जो मेंबर इस बुलेटिन में उनका नाम नहीं गुमराह कर रहे उनको जानकारी नहीं है देश को और इस सदन को गुमराह कर रहे ये 11 तारीख की घटनाओं के ऊपर ये कार्रवाई और ये रिकॉर्डिंग भी हमारे माननीय सांसद ने वीडियो पर ली और वो रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे डाला साफ दर्शाते हैं कि महिला मार्शल महिला मार्शल को पुश किया गया मेल मार्शल को स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश की गई ये 11 तारीख की घटना है और इसके लिए आपको माफी मांगते होंगे थैंक यू सो मिस्टर नादिमुल हक द नेक्स्ट स्पीकर सर विल यू स्पीक सर ओमिक्रॉन सर ओमिक्रॉन पर आपने बोलने दिया है बहुत बहुत आपका शुक्रिया ये बहुत बड़ा वायरस है सर ये वायरस हर जगह फैल रहा है पूरे देश में फैल रहा है सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जैसे ये फैल रहा है वैसे हमारे 12 मेंबर बाहर बैठे हुए हैं नो you began very well on the subject I'll call the next speaker लेने जा रहे हैं सर उसको हिस्सा लेने का मौका Abir Ranjan Biswas will you speak no not you Abir Ranjan Biswas রিমার্কটাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে কি বলেছে বলছে মার্শালে গলা টিপে ধরেছে সব বলেছে কে বলছে Sir, I thank you for allowing me to speak. Of course, sir, but the house should be in order at first. I request you, sir, please have the house in order. Member is objecting. You go to your seat. House cannot be in order when you are in the hall. The speaker is objecting that you all are here, and that is why he will not be able to speak on COVID-19. Sir, he is being not able to speak on COVID-19 because you all are here. Sir, your own opposition member is objecting to your behavior here. So this is not good. This is not good. It is very important issue, and of course, surely, all would like to speak on this. It is most important. But sir, it is of grave concern not only to the nation, but the world over. More than 70 countries have been affected. But also, sir, it is equally concerning that India is world's largest democracy, and here in this grandest temple of democracy, we have 12 members who are being denied their rights. That has nothing to do with this subject. Please bring them back, sir. We need them, sir. We need them. Without this, how can the house run, sir? G.K. Basan. Bring them, sir. G.K. Basan. Sir, Omicron. People are in the grip. Sir, it is a health emergency in the country. There is a life threat for the people because of Omicron in the country. The opposition party, sir, I request, being a very important subject, we have lost a lot of people in many states because of COVID-19. This is the time where we have to stand together and see that the government again helps the people in recovering from Omicron, sir. To start with, sir, I would like to congratulate the government and the Prime Minister for doing an efficient work in vaccinating 134 crore people and above, sir. But unfortunately, sir, the virus nature is creating constant threat today in the country, persisting and evolving, sir. To battle this transforming virus, sir, we should be together.
in the nation and need to promptly and rapidly do our steps, sir. Sir, we all understand that the efficacy rates of vacancies are bound to reduce due to scientific reasons and changing climate, sir. The Ministry of Health has more responsibility today, sir, for guiding and managing various aspects of COVID-19, sir. There is a need of cohesiveness in the country today. Both the states and the central government should be together with the central government and help the people in the country to see that we get rid of this Omicron, sir. To begin with, sir, the center and the state need to strictly adhere to all the rigorous screening with international arrivals, sir. Sir, I would request our friends from the opposition to be more responsible, sir. People have died. Listen to him. Now again, Omicron, they are in scare. Listen to him. I think the opposition, the government should come together to help. This is the only platform, sir, where we can sit down, discuss and deliberate and find a solution for emergency health in the country, sir. I request, sir, our friends from the opposition to be together with the central government, sir. Sir, I would like to say 6 recommendations today, sir, to the government, because number 1, all decision making concerning the Omicron crisis should be based on scientific evidence and expert recommendation, not on bureaucratic management system alone. The good part is that we are not in March 2020 now, where we knew nothing about COVID-19. Today, sir, we have reasonable knowledge of do's and don'ts about COVID. As our honorable members are aware, lab studies say that we need boosters today to help the people come out of COVID, sir. I have come to know through medical efforts, sir. That booster dose might not fully protect against the new variant. But, sir, fortunately, sir, it represents our best chance of keeping people out of hospital and medical emergencies, sir. Today, more than 60 countries are into the doses of boosters, sir. The Honorable Minister, I would request, may kindly inform us about plans for preparedness for the boosters, sir. Sir, I am not a medical expert, but what I have learned from COVID-19, I have the following suggestions to make to the government, sir. Our labs at present are not fully equipped to identify the new strain of the virus. So we need to close this shortcoming. There is a specific PCR kit to identify this strain. The government needs to stock these kits for any possible emergency use, sir. Only a few global manufacturers have kits that can identify COVID-19 positively irrespective of strain. We need to reach out to them sooner than later, sir. We may also, our government, try to develop indigenous technology in this, sir. Vaccines are costly while antibody tests are cheaper. Therefore, we need to identify frontline workers and people who need a third booster dose, while the government should encourage antibody tests to identify those genuinely who are needing the booster, sir. Sir, to complete, I would like to say that continued emphasis on masks and other COVID-appropriate behavior should be a must. Political parties and leaders can set an example and keep social gathering and mega rallies to a minimum. We should turn to digital media, sir. To conclude, sir, as soon as possible, before the new mutation picks up, we have to ensure first and second dose are fully, in a speedy way, done in the country, sir. At the same time, booster doses need to be administered
with this suggestion, sir, I would say that the need of the hour is medical emergency in the country, and the people of the country should adhere to the COVID norms so that we escape from ourselves, we escape both, sir, both the government and the opposition members should save their life. They should be here tomorrow to speak in the House. They should be alive tomorrow here to speak in the House. For that they should be with the government. All of us should be alive, sir. So kindly follow the government. Thank you, sir. So the short duration discussion, it is moved by G.K. Basan. Now we'll start the discussion. The first speaker will be Shiv Prasad Shukla. धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा पर भाग लेने के लिए अनुमति दिया। मान्यवर, हम सब ओमिक्रॉन पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे सामने ही ओमिक्रॉन खड़ा है। मुझे लगता है कि संसद के लिए इससे बड़ा ओमिक्रॉन और कुछ हो ही नहीं सकता है कि जो संसद चलने ही नहीं दे रहा है। इस नाते इस पूरे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है इन ओमिक्रॉनों से। तो इन ओमिक्रॉनों को शांत करने के लिए आप भी बैठे हैं, उसके बावजूद ये शांत नहीं हो रहे हैं। इंजेक्शन भी नहीं। मान्यवर, पूरा विश्व 2020 की शुरुआत में संपूर्ण विश्व एक वायरस के चपेट में आया था और उस वायरस पर तब यह चर्चा चली थी कि यह कोरोना का दवा क्या है। पूरा विश्व जो है उससे जब परेशान हो गया था तो परिणाम क्या हुआ कि यहाँ पर दो वैक्सीन सरकार ने डेवलप किया और 2 वैक्सीन डेवलप करके भारत की 134 करोड़ की आबादी में से अधिकांश को यहाँ वैक्सीनेशन करा दिया गया। कुछ लोग ये भी कहा करते थे कि ये तो मोदी वैक्सीन है, ये तो भाजपा की वैक्सीन है, यही थे। और जो कहते थे वो भी अपना जान बचाने के लिए मोदी वैक्सीन को लगवाए, भाजपा की वैक्सीन को लगवाए। भाजपा का वो खून तो इनमें नहीं है कि खून तो कहीं और से ले चले आए थे, लेकिन वैक्सीन से अपनी जान बचा लिए। मनोहर, जब हम चर्चा कर रहे हैं ओमिक्रॉन पर, आज स्थिति है कि ऐसे में एक बार फिर एक नया वायरस अपना पांव धीरे धीरे फैला रहा है। WHO ने इस नए वेरिएंट का नाम जो दिया वह ओमिक्रॉन दिया। WHO के द्वारा दिए गए इस ओमिक्रॉन नाम के आधार पर इतना फैला हुआ कि पूरे विश्व में इसकी चर्चा चली गई कि कोविड खत्म हो गया, एक नए वेरिएंट के रूप में आ गया, अब इसका क्या होगा। मगर 26 नवंबर 2021 को WHO के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन वायरस इवोल्यूशन की सलाह पर वेरिएंट को चिंता का एक प्रकार का नामित किया, जिसका नाम ओमिक्रॉन रखा गया। यह वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया। इसके बाद बेल्जियम, हांगकांग, बोत्सवाना, इजराइल समेत भारत में भी इस नए वेरिएंट के मामले सामने आने लगे हैं। अभी ब्रिटेन में मानव इसी ओमिक्रॉन से विश्व की सबसे पहली मौत हुई है। इस नाते सतर्कता इतना जरूरी है। भारत सरकार पहले भी इसको पूरी तौर पर, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने विजय पाया कोविड पर, वैसे ही अगर भारत में यह स्थिति आई तो निश्चित रूप से हमारा यह विश्वास है, देश का यह विश्वास है कि मोदी है तो सब कुछ संभव है और मोदी है तो यह
वायरस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस नाते निश्चित रूप से इस वायरस को भी यह देश पूरी तौर समाप्त कर देगा। लेकिन ये जो नया वायरस आ गया है, अब इसके लिए क्या करें, अपनी सीट पर न बैठ करके बेल में ही आ गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत में ओमिक्रॉन से बचाव के लिए RT-PCR टेस्ट तेज कर दिए हैं। विदेश से भारत आने वाले सभी यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर अपने RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। यात्रा के 14 दिनों पहले तक कहां गया है वह यह पूरा का पूरा बताना पड़ेगा। उसका विस्तृत ब्यौरा भी अपने आवेदन में लिखना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ऐसे जोखिम वाले देशों की लिस्ट भी अब दोबारा से संशोधित की गई है, जहां से आने वाले यात्रियों को कोरोना प्रोटोकॉल पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और उनको भी और सरकार भी ध्यान देगी। मनोहर, ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी तेजी से फैलता है, मगर इसके लक्षण बाकी वेरिएंट की तुलना में हल्के हैं। यह नहीं कि जो पहले उतनी मृत्यु हो जाती थी वो है, ये हल्का है। इसका कारण है एक स्टडी की माने वायरस अपने आप में इंसानों जैसा लुक देने की कोशिश कर रहा है। यह म्यूटेशन का इस नाते होता है क्योंकि उसका म्यूटेशन है। म्यूटेशन के नतीजे के नाते ये होता है। रिसर्च के अनुसार म्यूटेशन के दौरान इसने किसी और वायरस शायद सर्दी वाले वायरस के जेनेटिक मटेरियल का कुछ हिस्सा ले लिया। कैम्ब्रिज के बैंकिंग सौंदर्यजालन की अगुवाई में हुई स्टडी के अनुसार यह म्यूटेशन किसी ऐसी कोशिका से हुआ जो SARS-CoV-2 और आम सर्दी वाले वायरस दोनों का होस्ट हो सकता है, और उस होस्ट को बना करके इसका नाम ओमिक्रॉन दिया गया। इस म्यूटेशन का मतलब क्या है? मतलब जब इस पर भी डिस्कस हुआ कि आखिरकार यह म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, रिसर्च के मुताबिक इसका मतलब है वायरस तेजी से फैल सकता है, बीमारी हल्की होगी या फिर एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे। ओमिक्रॉन की खासियतें इशारा करती हैं कि यह वायरल रिकॉम्बिनेशन का नतीजा है, जो कि अलग अलग वायरसों के एक ही टेस्ट सेल में इंटरेक्ट करने से हो जाता है। मानवर इस दौरान इसकी कॉपी बनती रहती है और कॉपियां बनने के नाते पेरेंट वायरस के जेनेटिक मटेरियल ये अपने आप बन जाता है। स्टडी के अनुसार ओमिक्रॉन का म्यूटेशन किसी ऐसे व्यक्ति में हुआ होगा जो दोनों पैथोजन से संक्रमित था। दोनों जिस व्यक्ति का हुआ पैथोजन से संक्रमित था। इस नाते एक दूसरे में जेनेटिक सीक्वेंस ये पकड़ लिया और इसी के चलते ओमिक्रॉन का जेनेटिक सीक्वेंस पहले के रूपों से मेल नहीं खा रहा था। इस नाते इसके पहले के कोविड के जो प्रकार थे उससे भी अधिक की स्थिति इसकी आ गई थी। इसके संक्रमण से हुए कोविड के लक्षण वायरस के पिछले वेरिएंट से अब धीरे धीरे मैच कर दिए। यही जेनेटिक सीक्वेंस कई बार ऐसे कोरोना वायरस में SCOV 229E में बार बार नजर आता है, जो आम सर्दी देता है। सौंदर्यजालन के अनुसार ऐसा भी जेनेटिक सीक्वेंस एड्स देने वाले HIV वायरस में भी दिखता है। एड्स और HIV वायरस में जैसा सीक्वेंस है उसी प्रकार का इसमें भी सीक्वेंस नजर आता है। दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिकों ने पहले इशारा किया था कि ओमिक्रॉन शायद ऐसे इंसान के शरीर में पनपा जिनका इम्यून सिस्टम HIV या इम्यून सिस्टम को कमजोर करने वाले किसी अन्य बीमारी से पीड़ित था। मान्यवर वैसे ही ये भी शांत हो जाएंगे जैसे हमारे देश में हमारे इलाज के बाद ओमिक्रॉन शांत हो जाएगा। यही वही दक्षिण अफ्रीका में
कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की चपेट में आने वाले मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने भी कहा इसके लक्षण बहुत मामूली होते हैं। इस नाते भारत सरकार पूरी एहतियात तो बरत रही है, लेकिन इस पर भी सतर्क है कि इससे बहुत अधिक डेथ कैजुअलिटी ये नहीं होगी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख डॉक्टर एंजेलिक कोएट्जी ने बताया कि डेल्टा वेरिएंट से अलग हाल के समय में जिन मरीजों का इलाज हुआ था उनमें गंध या स्वाद नहीं आने की कमी थी। जैसे पहले होता था, कोविड के समय में गंध नहीं आता था और ये लोग कहते थे कि पता नहीं लगे, उस प्रकार की स्थिति थी। इसमें मानव बदन दर्द और सिर दर्द की शिकायत होती है। बदन दर्द और सिर दर्द की शिकायत होती है। कुछ शिकायत है बदन दर्द की? मतलब उन्होंने बताया कि समय में बहुत अधिक थकान होती है, थकान, बदन दर्द होता है। यह प्रायः उन प्रकार के जो थे उनमें शिकायतें पाई गई, उन्होंने इसकी शिकायत भी किया। उन्होंने भी कहा कि 18 नवंबर के बाद 7 मरीज जो पूरे विश्व में देखे गए थे, 18 नवंबर के बाद, अब धीरे धीरे वो बढ़े। इनके लक्षण कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से पीड़ित मरीजों से अलग थे। अधिकांश लोगों में वायरल बुखार के मामूली लक्षण थे, लेकिन लोगों ने बदन दर्द और सिर दर्द की शिकायत अधिक की। मानो कोरोना वायरस महामारी का संकट एक बार फिर दुनिया के सामने मंडराने लगा है। इसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो सामने आया है, इसे संक्रमण में तेजी से बढ़े हैं। भारत में दूसरी जानलेवा लहर का कारण बनने वाले कोरोना के डेल्टा वेरिएंट, जो इसके पहले था डेल्टा वेरिएंट जो कोरोना में था, डेल्टा वेरिएंट से भी इसे खतरनाक माना जा रहा है बढ़ने के चक्कर में, मतलब फैलेगा अधिक इस आधार पर। हालांकि इस वेरिएंट के बारे में वैज्ञानिक अभी तक कुछ बहुत स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। इतनी बात जरूर आई है कि यह अभी बढ़ेगा। इस वेरिएंट में लगभग 32 म्यूटेशन देखे गए हैं, 32 म्यूटेशन देखे गए हैं इस वेरिएंट में। ओमिक्रॉन वेरिएंट यानी B111 सबसे पहले जो दक्षिण अफ्रीका में आया था, इसके बाद यह दुनिया भर के कई देशों में पहुंच चुका है। भारत में भी इसके मामले अब आ गए हैं सामने। लक्षण इसका क्या है मानव? जब हम लक्षण पर विचार करते हैं क्या कि इसका लक्षण क्या है, ओमिक्रॉन से पीड़ित मरीजों के गले में खराश सबसे ज्यादा देखने को मिली है। खराश? हाँ। इसके साथ ही वायरस के इस वेरिएंट में पीड़ित लोगों को ज्यादा थकान महसूस होती है बहुत ज्यादा। हालांकि कोरोना से दूसरे वेरिएंट की तरह इस वेरिएंट से पीड़ित लोगों का स्वाद और सूंघने की शक्ति नहीं जाती है और ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज्यादा गिरता नहीं है। ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार ने ऑलरेडी गाइडलाइंस जारी कर दिया है। क्या बात है? पूरी तौर पर जारी कर दिया है, जिसका पालन जरूरी है। इसमें ज्यादा वही बातें हैं जो हम जानते हैं, पहले भी इसका ये किया जा चुका है। सबसे जरूरी है, अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है, जैसे ये लोग हैं, अगर वैक्सीन न लगवाए हो तो मोदी वैक्सीन या भाजपा की वैक्सीन लगवा लें तो सबसे अच्छा होगा कि उससे बचाव हो जाए। हाँ, उन्हीं को कह रहा हूं। अगर एक डोज लग चुकी है तो दूसरी भी लगवा लीजिए ताकि पूरी तौर पर सुरक्षित रहो। मास्क पर खास डाल दो, मास्क पर खास डाल दो। मोदी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, इस तरह से नहीं जैसे खड़े हो। साथ ही थोड़ी देर में हाथ धोते रहे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। मनोहर, अल्कोहल का हम लोगों को इससे बचने के लिए निश्चित रूप से भले खतरे ना हो फिर भी बचाव करना चाहिए। भारत में जो मामले मिले हैं
वो सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में आए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 18 मिले हैं, राजस्थान में 9 मिले हैं, कर्नाटक में 3 मिले हैं, केरल में 1 मिला है, गुजरात में 3 मिले हैं, दिल्ली में 2 मिला है, आंध्र प्रदेश में 1 मिला है और चंडीगढ़ में 1 मिला है। इस प्रकार से भारत में ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं, उस केसेस को स्टडी करके पूरी तौर पर इस डिटेल देना है, डिटेल नहीं। आप दीदी इस नाते बता रहा हूं कि सतर्क हो जाइए। 20 नवंबर 2021 को WHO ने बताना है, WHO के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप वायरस एवोल्यूशन की सलाह पर वेरिएंट का किया। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि डेल्टा सहित अन्य प्रकारों से तुलना में ओमिक्रॉन कितना पारगम्य है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलने की बात है। वाह भाई वाह। प्रारंभिक सच से मान्यवर ये पता चला है कि प्रारंभिक सच से पता चलता है कि चिंता के अन्य प्रकारों की तुलना में ओमिक्रॉन के संक्रमण का जोखिम बढ़ सकता है। इस नाते जो सतर्कता हमने पहले बताई है, भारत सरकार जिस प्रकार से बता रही है, क्या हमें बचाव करने की जरूरत है, वो पूरी तौर पर हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। यानी जिन लोगों को कोविड-19 था, वो ओमिक्रॉन से संक्रमित हो सकते हैं, इस नाते बचाव की जरूरत है। लेकिन जानकारी अभी बहुत कम है, बहुत सीमित है। इस नाते WHO तकनीकी भागीदारों के साथ काम कर रहा है ताकि टीकों सहित हमारे मौजूदा प्रतिबंधों पर इस प्रकार के संभावित प्रभाव को समझा जा सके। गंभीर बीमारी और मृत्यु को कम करने के लिए टीके महत्वपूर्ण हैं। इसमें प्रमुख परिसंचारी संस्करण डेल्टा शामिल है। वर्तमान टीके गंभीर बीमारी और मृत्यु के खिलाफ प्रभावी रहते हैं। न जो मतलब जो भारत में जो 3 टीके मिले, उन तीनों की स्थिति है कि वह उसका प्रभाव इस पर भी हो सकता है और इसको लगवाने से इस तरह जो लोग भी न लगाए हों, उनको निश्चित रूप से पहला दूसरा टीका लगवा लेना चाहिए। और जिस प्रकार से वह अपना बचाव उस समय करते थे कोरोना के समय में, उस बचाव को हमको आज भी एहतियात के तौर पर करने की आवश्यकता है। इसलिए मान्यवर आज ओमिक्रॉन पर जो चर्चा हुई, इस नाते हो गई कि भारत सरकार इस तरह से सतर्क है कि अपने लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित कर दे, पहले से तैयार कर दे। उस तैयारी के आधार पर ही लोग सतर्क रहे और उसी सतर्कता के साथ यह विषय आया कि ओमिक्रॉन इस नाते विपक्ष ये चाहता नहीं है कि ओमिक्रॉन पर डिस्कशन हो। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में उनको भाग लेना चाहिए, उनको अपना पक्ष रखना चाहिए, अपने विषय रखना चाहिए, लेकिन भाग इस नाते रहे हैं कि सरकार के सारे प्रयासों को फिर वो कैसे नहीं, कुछ सरकार ने किया ही नहीं। सरकार सब कुछ करती है, इनके नजर में कुछ नहीं आता है क्योंकि इनको इस पूरे सदन को डिस्टर्ब करना है। तो सदन को डिस्टर्ब करने के नाम पर ये सरकार को भी पकड़े गए। इस नाते निश्चित रूप से इस ओमिक्रॉन पर जो बहस चल रही है, मैं तो आमंत्रित करता हूं कि इनको भी इस बहस में भाग लेना चाहिए, भाग लेकर के अपने विचार रखना चाहिए और विचार रख कर करके हम लोगों के साथ सहयोगी होना चाहिए। सरकार के सरकार के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए, लेकिन ये सरकार के प्रयासों की सराहना करने को कौन कहे? देखिए शिवसेना नाच रही है, शिवसेना नाच रही है। अब क्या करें हम, जबकि 18 केस महाराष्ट्र में ही है। ऐसी स्थिति में मान्यवर ओमिक्रॉन पर चर्चा बहुत ही जरूरी है। इस जरूरी के आधार पर सदन में सबको चर्चा करना चाहिए, हम लोगों को भी करना चाहिए, इन लोगों को भी करना चाहिए। सब लोग मिलकर के चर्चा करें, इसके बचाव के लिए करें। अगर आवश्यक हो तो सरकार से अनुरोध करें, सरकार से अनुरोध करने के बाद ये कहें कि आप इसको करिए। साथ ही साथ जो ये विषय बार बार उठा रहे हैं, माफी भी मांगनी चाहिए। रोज
माफी भी मांगना चाहिए। रोज माफी मांगनी चाहिए, समाप्त कीजिए। धन्यवाद। कारण भी रोज धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर was but she is not Kanimuji, she is not in her seat. Will you speak? Sir, respected chairperson, please revoke the 12 people. Okay. As important as the COVID, those 12 people are also important to be in the Nabanita House, Kishan. right? Nabanita Kishan. Sir, thank you, sir. Sir, very, very important, sir. Sir. One minute, sir. Sir, 1 minute. Honorable Chairman, this Omicron issue is very, very important. My brother, sisters, must kindly listen to me. Please, 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 please listen to me. Please listen to me. The member is appealing to you. Let there be order in the House and listen to him. You are denying my right to speak. My right to speak is being denied by you all. Please. No. Our central government, headed by Honorable Prime Minister, is doing very good work and taking all steps and urging all out work to protect the Indian people. So we in Tamil, there is a saying, Noyatra Valve Kureyatra Selvam. In Tamil, there is a Tamil saying, Noyatra Valve Kureyatra Selvam. Noyatra Valve Kureyatra Selvam. The health is wealth. Health is wealth. No. Our Prime Minister waging all out war to protect India. India became a world pharmacy only because of the steps taken by our Honorable Prime Minister. What you are doing is undemocratic. You are not allowing me, but you want to uphold the democratic rights. That is not correct. Only because of the efforts taken by Honorable Prime Minister, a very good healthcare system is in place. In Constitution, right to life is guaranteed. But whether the right to health is guaranteed right or not is an academic question. But because of the effective steps taken by our Honorable Prime Minister, a robust, very good healthcare system is in place. Each and every individual is being protected by our Prime Minister. Our Prime Minister is guarding our Indian people like Madurai Veeran, Ayyanar. He is a protector of all people like God Madurai Veeran, like Ayyanar. So what you are doing is not good. So I thank you, sir. I thank Honorable Prime Minister. Thank you, Nabanita Kishan ji. Now the next speaker is Ramnath Thakur. Ramnath Thakur. उपसभापति महोदय, आपने अल्पकालिक चर्चा में शामिल होने के लिए मुझे निमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जानते हैं पहले कोरोना में जितने लोगों की मृत्यु हुई उसके प्रति मेरा दल श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। सभापति उपसभापति महोदय, कोरोना में 3-4 मुद्दे हैं जो बिहार में 9 करोड़ 2 लाख लोगों को टीका किया जा चुका है। ओमिक्रॉन जो बीमारी है इसके बारे में शोध यहाँ के डॉक्टरों को करना चाहिए और उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जो मृतक कोरोना में मरे हैं वो
बिहार सरकार 4-4 लाख रुपए मृतक के परिवारों को देने का काम किया है, जबकि दिल्ली सरकार 50,000 रुपया देने की सोच रही है। अन्य राज्य भी इस पर सोच रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहिए कि डॉक्टरों की, नर्सों की और पैरामेडिकल के लोगों को अधिक से अधिक इसमें शामिल होना चाहिए। ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए। बिहार जो 2 लाख प्रतिदिन टीकाकरण कर रहा है, इसमें आगे लोगों को टीकाकरण में व्यस्त रहना चाहिए और डॉक्टरों की संख्या बढ़ानी चाहिए, नर्सों की संख्या बढ़ानी चाहिए, पैरामेडिकल कॉलेजों की पैरामेडिकल के कर्मचारियों को बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ बिहार में 16 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, 11 निर्माणाधीन हैं। इसलिए इस बीमारी को इलाज के चलते लोगों को शिक्षण देना चाहिए, जागृत करना चाहिए और इससे कैसे हम निजात पावे, पूरे सदस्यों को इस पर विचार करना चाहिए। केंद्र की सरकार इसमें आगे बढ़ के काम कर रही है। इसलिए इस अल्पकालीन चर्चा में सम्मिलित होने के लिए आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और शुभकामना व्यक्त करते हैं कि इस बीमारी को दूर भगाने के लिए हम सबको मिल करके इससे निजात दिलाने के लिए काम करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद रामनाथ ठाकुर जी। द नेक्स्ट स्पीकर इज प्रोफेसर मनोज कुमार झा। मनोज जी। जी श्योर। माननीय सभापति महोदय, उपसभापति जी, बहुत खुशी की बात है कि सदन इसी वर्ष दूसरी बार कोरोना के बारे में चर्चा कर रहा है। इश्तहार से निकल करके, विज्ञापनबाजी से निकल करके कम से कम कुछ कॉन्क्रीट चर्चा हुई। लेकिन महत्वपूर्ण ये है माननीय उपसभापति महोदय कि ऐसे विषय पे मैं समझता हूं सत्ता पक्ष का विशाल हृदय होना चाहिए। सस्पेंशन वापस लीजिए, सब शामिल होंगे। मनोज जी, मनोज जी, हम सबका दायित्व है सर, हम सबका दायित्व है सर। हम आपको सुनना चाहते हैं, आप विषय पर बोलिए। हम आपको सुनना चाहते हैं। जो विषय यहाँ चर्चा में नहीं है वो बोलना नहीं है, आप विषय पर बोलिए। हम आपको सुनना चाहते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ है, किसी भी सदस्य ने गरिमा को तार-तार नहीं किया। अगर माई वे और हाईवे से सर संसदीय लोकतंत्र चलेगा तो हम में से किसी के ये विषय नहीं है। निलंबन वापस हो, प्रोफेसर चर्चा विषय नहीं है। विषय कोविड-19 है, इस पर बोलिए, ओमिक्रॉन पर बोलिए। सर इतनी अगर बोलना नहीं चाहते मैं दूसरा स्पीकर बोला लेता हूँ। माननीय एक मिनट, माननीय उपसभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य भाजपा के जब बोल रहे थे शिव प्रताप जी, उन्होंने हम सबको ओमिक्रॉन कहा। सर ये शब्दावली उचित है? इसी शब्दावली से आक्रोश होता है और मैं समझता हूं सर कि हम सबको साझा मिलकर के निलंबन वापस लिया जाए और संसद को आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं प्रोफेसर झा। मैं दूसरे स्पीकर बुलाता हूं, सुशील कुमार गुप्ता जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये कोरोना का वायरस सत्ता के गलियारों से निकलकर इतना ताकतवर हो गया है कि चेयर को कमजोर कर दिया? ये चेयर अपने सदस्यों का प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे। 12 सदस्य बाहर बैठे, परंतु कोरोना कोविड-19 चर्चा का विषय है कोविड-19। सुशील कुमार गुप्ता जी, ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय है कोविड-19। आप पहले सब्जेक्ट पर बोलिए, विषय पर बोलिए, उसके बाद बाकी बात कर लेना। आप अभी बोलना नहीं चाहते? मैं कोविड-19 पे बात कर रहा हूँ, आप मुझे परमिशन दें। मैं ये पूछ रहा हूँ, नहीं, आप अगर सब्जेक्ट में बोलना नहीं चाहते हैं, विषय में बोलना नहीं चाहते हैं तो ठीक है, मैं दूसरा स्पीकर बुला लेता हूँ। नेक्स्ट स्पीकर इज कोविड-19 पे सर कोविड-19 पे आप चर्चा नहीं चाहते। नेक्स्ट स्पीकर इज जफर इस्लाम। अरे तो आप भी तो हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।
thank you very much for giving me this opportunity, and I'm also thankful to my leaders and my leadership for having given me this opportunity to speak on a very important subject, sir. And it's not only important for us, it's important for the society, because we are talking about something which is a menace for the society. It is not exclusively for BJP or for the ruling party or the opposition parties. I'm sure they must understand that this is an important issue. We are discussing about COVID-19, we are discussing about Omicron. This is a new variant. And we must appreciate that government is sensitive about it. That's why we are discussing about issue. Are we discussing about us? Oh, no, we are not discussing about us. We are discussing about the society. We are discussing about our nation. This is something which is going to impact every citizen of this country. That's why government is sensitive. Government has raised this issue so that you can participate. You can protect your own people where you represent. Those representatives must protect your people, but you are not sincere and not sensitive. Sir, I will take this opportunity to highlight few issues, sir. I can only request the opposition parties, Sushmita ji, it is going to impact all of us, not only you, not only me, the society. We are discussing. We are discussing about the society. We are discussing about the society. Mr. You should understand. No. There can be verbal duel. There cannot be verbal duel. You address the chair. You address the chair, not the member. You address the chair. Okay, sir. Please. Please go to your seat. All I would want to say, sir. All I would want to say, sir, that India is under the leadership of the Honorable Prime Minister has been able to successfully tackle COVID-19. We have seen phase 2, we have seen phase 1, and we have been successfully able to tackle it because we had a leadership of Honorable Prime Minister. They are feeling secure today. That's why they are not concerned, because they are feeling secure. They have been vaccinated. I think they must understand that what is important for the society. This is important. Is it not important for the society? This is an important issue. We must discuss this because it is going to impact every citizen of this country. And who should be more responsible? This opposition should be more responsible. They are the one who should ask us to discuss about this issue. But they are not showing any sincerity. They are not showing anything which suggests that the opposition really is concerned about the society, but they are more concerned about the politics. They are more concerned about issues which are not relevant, but they want to discuss those issues. But issues which are relevant for the country, for the society, for the people of this great country, they are not important. Today I would want to say, I would want to ask, sir, with your permission, I would ask opposition bench, can't they behave responsibly? Can't they allow? I am not a very senior member of the Rajya Sabha. I have been here only for less than a year. I have given this opportunity to speak. I have not been able to. My maiden speech has not taken place. Today I have the opportunity. Could be a maiden speech for me because I have not had the opportunity to have a maiden speech. If I can request opposition bench to at least show some sincerity about issues which is important, which is worth discussing for every citizenship of this country. If they are more into politics, they are more interested about people. They are more interested about their power, they are more interested about propagation of something which is important. Sir, I want to, since we have the Honorable Health Minister, I would like to ask something which could be worthy of going for other people like this, even though opposition bench. Sir, मुझे लगता है सर कि ओमिक्रॉन जो है ग्लोबली ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट फेज 1, फेज 2 के बाद ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट इट्स अ न्यू वेरिएंट सर which have started from South Africa, traveled to many other countries, more than 60 countries. We also want to know how did it come to India? Of course, we know that the origin is South Africa. It may not be that इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं है लोगों में, लेकिन
बहुत ज्यादा असर नहीं, लेकिन फिर भी लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं। ग्लोबली देखिए सर 20% ज्यादा बढ़ गया है इसका इम्पैक्ट, जो है 20% ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं इससे। और खास के अगर आप देखिए यूके में तो 44% जो नए केसेस आ रहे हैं सर, 44% नए केसेस जो आ रहे हैं वो ओमिक्रॉन से है। मतलब वहाँ कोविड में जो न्यू वेरिएंट आया है सर, उसको 44% जो 5000 जो आज लोग वहाँ पर संक्रमित है कोविड से, उसमें से 44% जो है ओमिक्रॉन के है। इससे खतरा बढ़ता है, देश को खतरा बढ़ता है। इसलिए देश की सरकार ने इस इशू को उठाया यहाँ पर कि चर्चा की जाए। अगर इंग्लैंड में होता है 44% लोग संक्रमित होते हैं जो टोटल कोविड के 44%, इंडिया में भी हो सकते हैं। हमने फेज 2 देखा है, फेज 2 में किस तरह से इम्पैक्ट हुआ था। आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दिस इशू सर। व्हेन यू हैव द हेल्थ मिनिस्टर सिटिंग हियर, we can raise the issues and Honorable Health Minister can respond to those issues, which will be very useful for everyone, every leader, not only for us, not only for opposition parties, but every leader, because they can go back to their own constituency. They can preach what they have learned in this house from the Honorable Health Minister. They can preach and convey to their people in their own constituency, but they are not interested. What is their interest? In power, politics, but not in people. Our government is more interested about people, not in any other thing. But primary objective of ours is a common man on the street should feel safe and secure. And that can happen only if there is a sensitive government, and this government is sensitive. That's why we are raising this issue. We invited opposition parties as well to be sincere, be responsible, discuss issues which is going to impact the society, but they are not interested. Sir, what is important? I will raise few important questions, sir. Please conclude now. Sir, it is sort of a middle speech, sir. I think it's an important issue, sir. Allow me to speak, sir. Sir, I want to understand. First of all, there are people who have taken single vaccine. There are people who have taken second dose of vaccine. I want to highlight and also want to understand from the Honorable Health Minister, sir, whether this vaccine is working for Omicron patient as well, or whether we need to take another, or we will have some other solution for Omicron. Secondly, हमने सुना ऐसा सर कि जिसने फर्स्ट डोज ले लिया 80% आबादी अगर फर्स्ट डोज भी लेती तो 80% आबादी सिक्योर होती है। सिर्फ 20% आबादी जो है उसके कहीं ना कहीं डर रहता है, खदशा रहता है, बिकॉज उनके कुछ और प्रॉब्लम उनके होता है। इसलिए वरना 100% जो है हमारे जो वैक्सीन बनी है वो सेफ एंड सिक्योर है, लेकिन फिर भी सेकंड डोज देते हैं कि कोई ना कोई छूट ना जाए, इसलिए बाकी 20% के लिए 80% को भी देना पड़ता है। सर प्लीज गो टू योर सीट। आप अपने सीट पर जाइए, हम आपको सुनेंगे, मौका देंगे आपको। I am discussing on important issues, sir. We are not discussing an important issue. Opposition is not interested in people. Opposition is only interested in politics. Politics, power, that is something much better for them. For us, what place to our state is people. That's why we are more concerned about people. That's why we are raising issues which is more concerned about people, sir. And they are disturbing it. They are not behaving like a responsible opposition party, sir. They need to, on sensitive issues like it, important issues like this, they must behave like responsible opposition parties and behave that they also represent constituency, they also represent people, they are also people's representative, and they must come back and they must go back and say and convey to the people what they will get to know from the Honorable Health Minister. What is the status of Omicron, how it is spreading in the country, how it will impact the society, what kind of initiative government has taken, how we will tackle with the situation. We all know, sir, we have a Prime Minister who has been acknowledged by the global community that he has the ability to tackle a menace like COVID-19, first phase, second phase, and now Omicron. Still we want to understand from the Honorable Health Minister, because whatever he will tell, that will be very useful for the society, for everyone, even the opposition parties. But see their behavior, sir, see their behavior. What are they doing? They are not showing any intent to understand from the Honorable Health Minister what is this menace is, how it is going to spread,
thought is whether it will also impact our little children, whether because they have not been vaccinated, sir, and if they have not been vaccinated, whether this is going to impact. These are so important issues. I'm really surprised as a new member of this house, sir, that why opposition are not interested in important subject which is going to concern the society as a whole. Yes, they are not concerned. Please conclude. Sir, there are some more issues I want to raise. Your time is up. Please conclude. This is sort of a maiden speech, sir. Allow me to speak some more, sir. Sir, I want to understand from the Honorable Health Minister, sir, because I'm raising issues which I think everyone should understand that it is relevant issues. I want to understand from the Honorable Health Minister, sir, whether this community there is a possibility of community spread. क्या ये community spread हो सकता है, sir? क्या इसकी खतरा है ये, sir? क्या ये खतरा को टालने के लिए क्या करना चाहिए, सर? ये सारी चीजें जो है कौन बता सकता है? ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर बता रहे हैं और ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ऑपोजिशन उसका फायदा नहीं उठाने के बजाय वो ऑपोजिशन ज्यादा इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स करने में। उनको पब्लिक में लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको सिर्फ इंटरेस्ट है पावर में, पॉलिटिक्स में। उनको जनता की चिंता नहीं, उनको जनता की चिंता नहीं। सर, मुझे मालूम करना है ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर से, सर मुझे ये जानकारी लेनी है कि क्या वो बच्चे जो आज हमारे बच्चों को 18 साल से कम बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, सर उनको वैक्सीनेट किया जाना है, अभी तक वो वैक्सीनेट नहीं किए। क्या बच्चे हमारे इस ओमिक्रॉन में सेफ हैं? क्या उनको किसी और तरीके से प्रोटेक्शन चाहिए? क्या संभावनाएं हैं उसकी? क्या संभावनाएं है उसकी? आप सीट पर जाइए और बोलिए किस तरह से मौका खत्म किया जाए। तो ठीक है, जाइए, कल बोलना। बड़ी भारी चिंता है सोसाइटी के लिए, सर ये चिंता है। हमारी सिंसियर सरकार है, हमारी सरकार बाहर अच्छे इनिशिएटिव ले रही है, सर हमारी सरकार, लेकिन उसकी जानकारी लेने के लिए अपोजिशन बेंच को जरा से भी चिंता नहीं है। ये हाउस में ही तो जानकारी नहीं जा सकती सर, इस हाउस में ही तो जानकारी नहीं। Your speech will remain inconclusive. You will speak tomorrow. Mantri ji. Sir, I would like to place on record the short duration discussion notice from Miss Sushmita Dev, Shri Nadimul Haq, Biswas, ये सब जीके वासन, ये सब अपोजिशन पार्टी का है। इनके छोड़ के बाकी सब अपोजिशन पार्टी का है। और मैं ये कहना चाहता हूँ इनके रिक्वेस्ट पर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो प्लीज इनके रिक्वेस्ट पर हमने ये डिस्कशन को अलाउ भी किया, चर्चा शुरू भी किया। फिर भी in important short duration discussion they don't want to participate. Even morning they did not allow the question hour and they did not allow the zero hour. In spite of that, we are requesting them, we are appealing them. This is a very important issue. Kindly allow us to discuss. मैंने 12 लोगों को बुलाने के लिए हम बार-बार कहा है। आपने जिन लोग इस पार्लियामेंट रक्षा करने के लिए, संरक्षण करने के लिए उनका प्राण त्याग कर दिया, उन लोगों के हमले करने का, उन लोगों के अटैक आपने किया, इसलिए आपको माफी मांगना पड़ेगा। हम ओपन है इसे आपको लेने के लिए। मैं इसलिए आपको आग्रह कर रहा हूँ, आप चर्चा में पार्टिसिपेट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। आपने वादा किया था 2 बजे से हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसे वादा किया था, लेकिन वो वादा से हट रहे हैं। मैं इसलिए आग्रह करता हूँ, जो आपने वादा किया था 2 बजे से इंपॉर्टेंट चर्चा ले लो, हम इस पर पार्टिसिपेट करेंगे, इनका वादा था। इसीलिए मैं फिर से आग्रह करता हूँ, चर्चा में भाग लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लोग जानना चाहते हैं तो कोविड में हम लोग क्या कर रहे हैं, सदन में क्या चल रहा है, ये लोग जानना चाहते हैं। इसीलिए मैं आग्रह पूर्वक कहता हूँ, कृपया डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो। धन्यवाद। Yes. What's your point of order? Under what rule? Rule 177 regarding short duration discussion. It says that if the chairman is satisfied after calling for such information from the member who has given notice and from the minister as he may consider necessary that the matter is urgent, etc., then the chairman can allow the discussion. Now the Honorable Minister was speaking just now. 2 minutes back he said
that we have decided to allow the opposition. Who is he to decide? Only chair can decide. Minister cannot decide. Chairman can decide. Therefore, that should be expunged. That should be expunged. That should be expunged. Because only chairman can decide. Sir, concerned minister, after your approval. 170. I have heard you. I have heard you. After your approval, sir, after your approval, chair's approval, concerned minister has agreed to for the debate. This is what I have told. Okay, I have heard you. Okay, I have heard you. I have heard you. So now the House stands adjourned to meet at 11 o'clock on Tuesday, the 16th December. Thursday, 16th December 2021. Thursday. I am